Welcome to Vidya Vistar, your one-stop destination for mastering math, science, and coding. Whether you are a student of class 11 or 12, struggling with any concepts or placement aspirant looking for any coding interviews to crack coding interviews, you have come to very right place. Here we will break down a complex topics in the simplest and most relatable way using in our real life like examples, real visual explanations and smart problem solving techniques like solving previous year questions, JEE Mains of, or either it could be JEE Mains or NEET, or we will also solve coding DSA question, doing a dry run of many questions like of lead code or hacker rank. And from lead code questions we will discuss all about from dry run to everything, the algorithms and the data structures, everything in smart way, and we will think logically in all the questions and concept related to it. Get ready to learn smart and think logically, and let's succeed together. Okay, don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon so you never miss an update related to this channel. Okay, so now we're going to start a new chapter, circle. This is of class 9, and we will discuss all about NCERT only, but after completing NCERT we will delve down into ICSE questions also, ML Agarwal and Selena type of questions, miscellaneous questions. We will pick up that questions also, but first of all we will make our base with the NCERT only. Okay, so in this video we will cover the entire concept of circles in a fun and this is style with real life examples using animations and practical applications also. Okay, so first of all we must know what is a circle. So first of all, definition of circle will be a closed curve. Okay, this is a closed curve, okay, or a locus of a closed curve where all points are equidistant, from a fixed center. ये जो केंद्र आपको दिख रहा है ये केंद्र है, मतलब केंद्र हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर. ठीक है, सेंटर पॉइंट. The equidistance, every point is equidistant from the center. Like this is the one point. Okay, this is also a point, this is also a point, this is also a point. Many points are there. ठीक है, many single points are there. Okay, which are equidistant from the center, and that equidistant distance is called radius. Okay, that is called radius. Real life example, we can take an example of cycle wheel. Have you seen the cycle wheel like this? Here spoke is also there in cycle wheel. Have you seen cycle wheel? So this is the example of cycle wheel. Cycle wheel is an example of circle, and we can also take an example of clock. Okay, clock is also an example of circle. Okay, the right minute hand and second hand rotate like this, moves in a circular path, moves in a circular path. And we can take example of pizza also, pizza. When you take a slice, the remaining part is a chord. When you take a slice, like this is a slice, have you taken this slice, and this remaining part is called chord. Okay, remaining part is called chord. What's the point? Now we'll discuss the important terms of circle. Like this is a circle. If this is a circle, so center part is called center, and from the center any point on circle is called radius, which is equidistant. Okay, and simply diameter example you can take. If you cut a golgappa with into two equal halves, and that two equal halves is divided by a diameter only. Okay, so diameter कुछ नहीं होता है, diameter d का फॉर्मूला होता है d is equal to 2 times of r. ये एक रेडियस यहाँ से यहाँ ये रेडियस है, और यहाँ से यहाँ ये भी रेडियस है, तो यही तो डायमीटर है ना. d is equal to 2r, तुम्हारा रेडियस होता है. एंड व्हाट इज सर्कमफेरेंस? द सर्कमफेरेंस इज द एज ऑफ द गोलगप्पा. हैव यू सीन गोलगप्पा? गोलगप्पा इज लाइक अ सर्कल ओनली. सो द एज ऑफ गोलगप्पा मीन्स द बाउंड्री ऑफ गोलगप्पा, द एज ऑफ गोलगप्पा, एंड दैट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल is 2 pi r. This is very basic thing, but I am teaching this. Okay, this is the circumference of a circle. Okay, everything is clear. This is a circle, example of circle, real life example, clock and cycle wheel. Okay, what is center, what is radius, what is diameter, what is circumference of circle, 2 pi r. Okay, now got the point. Everything is clear. Now next, what is chord?
व्हाट इज कॉर्ड? एक पॉइंट से, सर्कल के कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक काटना, ठीक है। द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल, है ना, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड, इज कॉल्ड कॉर्ड, इज कॉल्ड कॉर्ड। ओके, अब आता है आर्क। आर्क क्या होता है भाई? अब देखो आपने ये कॉर्ड काटा, ओके, you cut this chord, you have make a straight line joining any two points. This is a chord, we know this is a chord like A and B. I have given a name A and B, so this is a chord, and this part, this is a arc, this is a arc, the curved part of the circumference. Any curved part of the circumference is an example of arc. We can take a real life example also. Have you seen rainbow? Rainbow is like this only. रेनबो ऐसे ही होता है ना, डिज़ाइन फुल कलर के रेनबोस ऐसे करके निकलते हैं ना। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ आर्क, आर्क इन द स्काई, ठीक है। ये आर्क है, मतलब कि कर्व पार्ट सर्कमफेरेंस का। ओके, यस और नो, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग सेक्टर पे, ठीक है। सेक्टर क्या होता है कि आपने कभी पिज़्ज़ा देखा है, ऐसे करके पिज़्ज़ा देखा है, तो ये होता है सेक्टर, ठीक है। सर्कल का कैसे सेक्टर हम बना सकते हैं? जैसे ये सर्कल है, मान लो, अच्छा रुको, मान लो जैसे ये सर्कल मैंने बनाया, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर का ये पार्ट मैंने काटा, तो ये क्या हो जाता है? ये सेक्टर कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? सेक्टर, जिसको हम लोग बोल देंगे हिंदी में क्या बोलते हैं? खंड बोल देते हैं, ठीक है, एक खंड, ठीक है। और यू कैन से स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा, ठीक है, दिस एग्जांपल ऑफ सेक्टर, स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा। ओके, अब सेगमेंट क्या होता है? ठीक है, सेगमेंट क्या होता है? इट्स लाइक अ कटिंग अ रसगुल्ला, ओके, कटिंग अ रसगुल्ला इन हाफ, ओके, इट क्रिएट्स अ सेगमेंट। इसको मैं बता दूंगा, जैसे ये हाफ से मैंने काट दिया तो सेगमेंट बन जाता है यहाँ पर ही। ये सब मैं सिखाऊंगा सब चीज़, बट अभी रुको, बस हम लोग अभी थोड़ा जल्दी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को अभी कुछ करना है, ठीक है। अभी हम लोग बहुत ही अच्छा चीज़ करने वाले हैं। पहला एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जैसे कि ये सर्कल है मैंने बनाया, ठीक है, थ्योरम 1 T1, ठीक है, थ्योरम 1, इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। अगर मैंने एक परपेंडिकुलर बनाता हूँ मैं, ठीक है, एक कॉर्ड पे, मान लो एक कॉर्ड मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है, और ये सेंटर है, सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर अगर गिराता हूँ, ठीक है, इफ़ आई एम ड्राइंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड, इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ओके, इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, लाइक जैसे ये मैंने परपेंडिकुलर बनाया यहाँ पर, सेंटर से परपेंडिकुलर गिराए तो ये बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट मतलब कि दो इक्वल भाग में काट देना, इक्वल भाग में काट देना, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप क्या दे सकते हो? आपने कभी ब्रिज देखा है? ऐसे करके, ऐसे ब्रिज देखा है? ब्रिज कुछ इस तरीके का ही होता है। ब्रिज में देखना ऐसे करके रस्सी से बांधा होता है। हावड़ा ब्रिज देखा होगा ना, या फिर आपने बांद्रा का ब्रिज देखा होगा जो मुंबई में है ना, बांद्रा ब्रिज। तो यहाँ पर ही आप सोचें कि जो ब्रिज है, ब्रिज को केबल से सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। एक होता है मेन केबल, ये दिख रहा है आपको, मेन केबल है, ठीक है, और ये है वर्टिकल केबल। सब ये वर्टिकल केबल क्या करते हैं ना, जैसे कि मान लो ये तुम्हारा ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज के नीचे में पुल वो होता है ना, पिलर होता है ना, तो पिलर क्या काम करता है? परपेंडिकुलर ही है ना, परपेंडिकुलर। तो काम क्या करता है? ये सिमेट्री देता है ताकि ब्रिज गिरे ना, ठीक है, ताकि ब्रिज गिरे ना, ये सिमेट्री का काम करता है, ओके। तो यहाँ पर जो वर्टिकल सस्पेंशन होता है ब्रिज में, वर्टिकल सस्पेंशन केबल जो भी होता है वो बाइसेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल केबल को, ठीक है। हॉरिजॉन्टल केबल जो होता है, ऊपर में हॉरिजॉन्टल केबल दिख रहा है, वो ये जो दिख रहा है आपको, ये सब वर्टिकल केबल्स जो दिख रहे हैं, ये बाइसेक्ट करता है केबल, जो जैसे कि ये थ्योरम है, ठीक है। समझ में आ गया? एकदम हम लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो थ्योरम 1 एकदम समझ में आया कि अगर हम परपेंडिकुलर बनाते हैं सेंटर से कॉर्ड पे, तो वो बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को, ठीक है। सेकंड थ्योरम क्या बोलता है? इक्वल कॉर्ड्स है, अगर इक्वल कॉर्ड्स है, अगर दो इक्वल कॉर्ड्स है, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मान लो मैं एक कॉर्ड ऐसे बनाता हूँ और एक कॉर्ड ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। तो अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, ये वाला कॉर्ड और ये वाला कॉर्ड, मान लो ABCD इक्वल है, तो जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो इक्वी डिस्टेंस होगा दोनों कॉर्ड पे सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। समझ में आया? मान लो कि तुम एक इमेजिन करो, यू आर 2 रोप्स इज टाइड एट इक्वल हाइट्स, ओके, इक्वल हाइट में बांधा गया है ट्री के।
अब जो डिस्टेंस होगा ट्री ट्रंक का मतलब सेंटर से टू द रोप वो तो सेम ही रहेगा। और एग्जांपल आप देख सकते हो, मैं अभी दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ पर ही जैसे ये फ़ैन है, ठीक है, ये फ़ैन है, ये फ़ैन का एग्जांपल ले लो। जैसे कि यहाँ पर एक कॉर्ड ये है, अच्छा ये सर्कल ही ले लो, ये सर्कल है, जैसे ये कॉर्ड है और एक कॉर्ड यहाँ है। अब यहाँ से ये वाला डिस्टेंस और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस दोनों बराबर रहेगा, यही चीज़ बोलता है थ्योरम। रियल लाइफ एग्जांपल ही बता दिया कि दो रोप तुम बांध दो ट्री से, अब जितना डिस्टेंस ट्री का ट्रंक से होगा सेंटर का, उतना ही डिस्टेंस वो रोप का भी उतना ही रहेगा, है ना। डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री ट्रंक एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्ड विल बी सेम। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट पे। क्या लिखा है, थ्योरम 1, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स दे हैव सेम रेडियस एंड टू इक्वल कॉर्ड्स। ये दिया होगा आपके बुक में, ठीक है, ये एनसीईआरटी के बुक में प्रॉपर आपको दिया होगा, ठीक है। आप एक बार चेक कर सकते हो कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, उनका रेडियस सेम है, दे हैव सेम रेडियस एंड टू इक्वल कॉर्ड्स, एंड दे हैव टू इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि तो एंगल है, एंगल सबटेंड बाय दिस कॉर्ड्स, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये फर्स्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है, 9.1 का, कि रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स, ठीक है। तो आपने ऐसे दो सर्कल बना लेना है, ऐसे दो सर्कल बना लेना है ना। यहाँ पर एक पॉइंट ओ है सेंटर का और एक पॉइंट ओ डैश है, ओके, और ये कॉर्ड है ए बी और दूसरा कॉर्ड है सी डी दूसरा का, ठीक है। अब हम लोग को देखना है ट्रायंगल ये वाला ओ ए बी और ट्रायंगल ओ सी डी, ठीक है, ओ ए बी ओ सी डी में। तो हम लोग यहाँ से दिख रहा है जो ओ ए है, ठीक है, ओ ए है, यहाँ से गिवन क्या क्या है, जो कॉर्ड्स है इक्वल है, मतलब कि ए बी गिवन लिख रहा हूँ, ठीक है, ए बी और सी डी बराबर है ना भाई, ठीक है, ए बी एंड सी डी इज इक्वल बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है कि टू इक्वल कॉर्ड्स, ओके, और सेम रेडियस भी सेम है, रेडियस सेम है मतलब कि ए ओ सेम है, ओ बी सेम है, ओ डैश सी सेम है, ओ डैश डी सेम है, ठीक है। तो ओ ए और ओ सी दोनों सेम हो गया, ओ ए ओ सी। वाई आई एम थिंकिंग लाइक दिस, मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का को पता होगा कि जैसे ट्रायंगल है, तो अगर उसका ये वाला साइड इक्वल है, अगर ये वाला साइड इक्वल है, तो और तीनों साइड से अगर इक्वल हो जाता है, एक के ऊपर एक रखते हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाता है। तो वैसे ही ओ ए अगर इक्वल है और ओ डैश सी इक्वल है, तो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो गिवन था कि रेडियस बराबर, रेडियस इज बराबर लिख देंगे, ठीक है। और ओ बी डैश और सॉरी ओ बी और ओ डैश डी, ए बी बराबर, ए बी रेडियस है, ठीक है, और ए बी और सी डी बराबर, ये तो ए बी गिवन है। तो सारा चीज़ गिवन है, तो साइड से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ओ डैश सी डी बराबर है, ठीक है। तो अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट एक के ऊपर एक रखते हैं, मान लो एक के ऊपर एक हम रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, छुप जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो सीपीसीटी से हम लोग बोल सकते हैं, क्या होता है सीपीसीटी का फुल फॉर्म पता है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ये तीनों एंगल बराबर, मतलब एंगल ए ओ बी, मतलब यहाँ का जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब कि सुपर इम्पोज करेगा ये वाला एंगल के साथ। तो एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डैश डी ए बी बराबर होगा, ओके। तो थ्योरम 1 था, ये हम पढ़ चुके हैं, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग को क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 9.1 का ये, ठीक है, कि लिखा है प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अगर वो जैसे सर्कल मैंने बनाया, दो सर्कल बना लो, ऐसे करके सर्कल बना लो, ठीक है, और एक कॉर्ड भी बना लो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, इफ प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स। अब यहाँ बोल रहा है कि इक्वल एंगल्स है, अब यहाँ पर ही इक्वल एंगल्स दिया हुआ है, ओके, इक्वल एंगल्स बना रहे हैं और देन द कॉर्ड्स आर इक्वल है, प्रूव करना है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि जो ये ए बी है और ये सी डी जो है ये बराबर है, वो प्रूव करना है। तो कर सकते हैं इस बार भी हम लोग, ठीक है। तो गिवन क्या किया है कि हम लोग को सेंटर पता है, दोनों को सेंटर बना लेना थोड़ा से, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना लेना, और प्रूफ क्या करना है हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ए बी और सी डी बराबर है, वो प्रूफ करना है, ठीक है। तो टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी सबटेंड इक्वल एंगल्स, एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी, ये गिवन था, और प्रूफ क्या करना है, ए बी और सी डी, ठीक है। तो ऐसा हम लोग ड्राइंग बनाए। अब हम लोग चेक करेंगे ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल पे, ए ओ बी और ओ डैश सी डी पे। तो ओ ए और ओ डैश सी,
है ना, ओ डैश सी होगा यहाँ पर, ओ ए एंड ओ डैश सी दोनों बराबर क्योंकि रेडियस बराबर है। ओके, अब ओ बी और ओ डैश डी, ओ डैश डी ये भी बराबर होगा क्योंकि रेडियस बराबर है। ठीक है, रेडियस बराबर है और ये चीज़ दिया हुआ है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये भी बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइड एंगल, साइड से ये साइड, ये एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो इससे हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं, साइड एंगल साइड से प्रूव कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो CPCD से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि AB और CD बराबर है, AB और CD बराबर है। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, इतना तक बहुत ईजी है। ठीक है, इसका रियल लाइफ आप एग्जांपल्स ले सकते हो, तो इसका आप रियल लाइफ एग्जांपल भी ले सकते हो। रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा सर, एग्जांपल जैसे आप ये देखो अर्थ है ये, ठीक है, यहाँ मैं बताता हूँ, ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ के आजू बाजू ये अर्थ का ऑर्बिट है। ठीक है, अब अर्थ के आजू बाजू क्या करते हैं, सैटेलाइट मूव करते हैं, ऐसे करके सैटेलाइट मूव करते हैं। मान लो यहाँ एक सैटेलाइट है, यहाँ एक सैटेलाइट है। ठीक है, अब ऐसे ये मूव कर रहा है, यहाँ जा रहा है और ये सैटेलाइट ऐसे आ रहा है, तो ये मूव करता है मान लो। ठीक है, सैटेलाइट, तो अगर ये इक्वल एंगल ऑफ मतलब इक्वल एंगल प्रोड्यूस करेंगे अगर ये सेम लेंथ ऑफ कॉर्ड है इन दोनों के बीच का। ठीक है, सेम लेंथ ऑफ कॉर्ड है इनके सेंटर से, तो ये एंगल भी सेम प्रोड्यूस करेंगे, सेम एंगल प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसका और एक एग्जांपल आप ले सकते हो, रुको इसका एक एग्जांपल और देंगे हम। इसका आप एग्जांपल जैसे आप फेरी व्हील्स देखते होंगे, फेरी व्हील्स जैसे ये झूला है। ठीक है, वो बिजली झूला होता है ना, ऐसे करके होता है ना बिजली झूला कुछ। ठीक है, ये सेंटर रहता है। अब जो बंदा यहाँ बैठा हुआ है और जो बंदा यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, इन दोनों का जो रेडियस है, देखो यहाँ से यहाँ का रेडियस है, ठीक है, वो सेम है, सेम है। और ये देखो ये कॉर्ड भी सेम है। ठीक है, दिख रहा है, ये कॉर्ड भी सेम है। ठीक है, तो ये जो एंगल प्रोड्यूस कर रहे होंगे ये दोनों एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम हो रहे होंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या हो रहे होंगे, सेम हो रहे होंगे। और ये क्यों होता है कि डिसबैलेंस ना हो, बैलेंस बनाने के लिए होता है। ठीक है, फेरी व्हील्स हैज़ केबिन्स जो कि सिमेट्रिकल अरेंज रहते हैं सेंटर के अराउंड। अब हर केबिन का जो डिस्टेंस रहता है, कॉर्ड लेंथ रहता है, ठीक है, सेम डिस्टेंस रहता है, देख रहे हो ना, सेम डिस्टेंस रहता है। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है, तो सेम डिस्टेंस रहता है अपोजिट केबिन्स का, जो सेंटर के इक्वल होते हैं, सेंटर से इक्वल होते हैं। ठीक है, जो कि इक्वल बैलेंस्ड वेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया। फिर आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक्स पे वो कर्व्स नहीं रहते हैं, जब ट्रेन मूव करता है सर्कुलर ट्रैक पे, तो वो इक्विडिस्टेंट रहता है, इक्विडिस्टेंट स्टेशन रहता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ट्रैक। ओके, समझ में आया। फिर सैटेलाइट का कवरेज भी देख सकते हो कि हम सैटेलाइट का तो बता ही दिया कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होते हैं, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जैसे अर्थ है, अर्थ के अगल बगल कम्युनिकेशन सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के ऊपर मूव करते हैं, मस्ट वो लोग इक्वल रीजन्स पे ही। जैसे कि और एक अच्छा एग्जांपल दे सकते हो, ये तो सैटेलाइट का हो गया। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है स्टेडियम, क्रिकेट खेलते हैं स्टेडियम है। ठीक है, स्टेडियम है, स्टेडियम में कुछ इस तरीके से सीट होता है ना, इस तरीके से बैठा जाता है सीट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो बंदा बैठा है, यहाँ जो बंदा बैठा है, मतलब जो इक्वल डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड बना रहे हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड बना रहे हैं, उन सब का एंगल बराबर ही रहेगा, सब का एंगल बराबर ही रहेगा, सब का एंगल बराबर ही रहेगा, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड पे है। ठीक है, जो नेक्स्ट वाले मतलब सीट में बैठ रहे हैं, उसके ऊपर वाले सीट में बैठ रहे हैं, उनका सबका एक बराबर होगा। ठीक है, तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल होता है। ओके, तो इसको यूज़ किया जाता है सैटेलाइट कवरेज के लिए, रेलवे ट्रैक्स में, हाईवे कर्व्स बनाने के लिए, फ्लाईओवर्स बनाने के लिए, फेरीज व्हील में, फेरीज व्हील मतलब वही बिजली झूला, स्टेडियम सीटिंग अरेंजमेंट जो होते हैं। ठीक है, सर्कुलर स्टेडियम होता है ना, फ्रंट रो सीट्स, जो जितने भी फ्रंट रो सीट्स है उन लोगों को सबका सेम रेडियस रहता है, सेम रेडियस है। अगर रेडियस सेम है, ये रेडियस सेम, ये रेडियस सेम, तो एंगल सेम एंगल वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ओके, ठीक है, तो अगर आपको और रियल लाइफ वाला थ्योरम समझना है तो एक थाली ले लो, ऐसे करके थाली के ऊपर, मेरे पास अभी कुछ है नहीं, ठीक है, बताने के लिए सर्कल कुछ है नहीं, तो बट हम समझा देते हैं। जैसे थाली लो और एक बिस्किट यहाँ पर रख दो और एक बिस्किट यहाँ पर रख दो। ठीक है, अब ये जब जॉइन होंगे सेंटर से, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे ना सेंटर पे, बोलो ना मेरे भाई। ठीक है, तो वैसे ही जैसे स्टेडियम रहता है, स्टेडियम पे ये तुम एक नया ऑर्बिट नया स्टेडियम का जो वो रहता है, सीट रहता है, ये नया वाला है। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट जो सबसे VIP लोगों के लिए रहता है, उसके ऊपर वाला। ठीक है, अब यहाँ पर एक बंदा बैठा है और यहाँ पर एक बंदा बैठा है, ये भी इक्वल एंगल प्रोड्यूस कर रहे होंगे ना। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल होता है इस थ्योरम का, समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से। और उसका कन्वर्स क्या है, अगर एंगल सेम प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि
उन दोनों का डिस्टेंस भी सेम होगा। और इसका सबसे इजी तरीका है कि फ़ैन, ठीक है, फ़ैन जब घूमता है तो इक्वल एंगल प्रोड्यूस करता है, और इक्वल एंगल प्रोड्यूस कर रहा है मतलब कि जो फ़ैन का पत्ती है वो सेम डिस्टेंस का ही होता है। आप देखिएगा फ़ैन का जो भी पत्ती होता है वो सेम डिस्टेंस का होता है। ओके, समझ में आ रहा होगा, ठीक है आपको इतना। फिर आप यहाँ पर एक ड्रोन का एग्जांपल भी ले सकते हो। जैसे ये ड्रोन है, ठीक है, ये ड्रोन मान लो एक ड्रोन है, अभी यहाँ उड़ना स्टार्ट किया, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, तो ये जो शैडो प्रोड्यूस कर रहा होगा बहुत छोटा शैडो प्रोड्यूस कर रहा होगा। अभी थोड़ा सा ऊपर उठा तो ये थोड़ा शैडो इसका बढ़ गया, अभी बहुत ऊपर बढ़ गया, ठीक है, बहुत ऊपर तक चल गया ये ड्रोन, तो इसका शैडो बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाते जा रहा है, मतलब जैसे जैसे इसका रेडियस बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे इसका रेडियस बढ़ते जा रहा है, मतलब नया सर्कल प्रोड्यूस हो रहा है, तो नया सर्कल प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका कॉर्ड लेंथ भी बड़ा होते जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एंगल भी बड़ा होते जा रहा है। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है वैसे वैसे एंगल बढ़ रहा है, और वैसे वैसे सर्कल्स बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे रेडियस बढ़ रहा है मतलब हाइट बढ़ रहा है, हाइट बोल लो रेडियस बोल लो वही चीज़ है, ठीक है। रेडियस बढ़ रहा है वैसे एंगल बढ़ रहा है, सर्कल बढ़ रहा है, और उससे उसी से कॉर्ड बड़ा हो रहा है, ठीक है। कॉर्ड उतना ही बड़ा हो रहा है, जितना ज़्यादा बड़ा होगा तुम्हारा एंगल उतना बड़ा ही कॉर्ड बनेगा ना, ठीक है। अब मान लो एंगल थोड़ा छोटा कर देंगे तो कॉर्ड थोड़ा छोटा बनेगा, इतना बनेगा, ठीक है। तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल सब हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं एक नया थ्योरम पढ़ने। एक नया थ्योरम ये है कि वही चीज़ है जो सेंटर से अगर परपेंडिकुलर गिराते हैं तो जो कॉर्ड है सेंटर से, अगर हम इस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर गिराते हैं, सेंटर से गिराया मैंने 90 डिग्री परपेंडिकुलर, तो ये क्या करता है बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। बाइसेक्ट कर दिया तो ये मान लो एम पॉइंट है और ये ओ है, ठीक है, तो ए एम और एम बी में बाइसेक्ट कर देगा। तो यही हम लोग को प्रूव करना है, कैसे करें। तो हम लोग को पता है कि ओ ए और ओ बी ये दोनों बराबर है, हाँ बराबर है, ठीक है। ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं, ऐसे ट्रायंगल है ना कुछ, इधर ए है, इधर बी है, इधर ओ है, इधर एम है, तो हम लोग को ये दो ट्रायंगल लेना है, ठीक है। एक ट्रायंगल ए वाला और एक ट्रायंगल ए वाला, ठीक है, दो ट्रायंगल है। तो एंगल ओ एम और एंगल ओ एम बी ले लो, ठीक है। तो ओ ए एम में ओ ए और ओ एम बी में ओ बी, ये दोनों बराबर है क्योंकि रेडियस है, ठीक है। और ये वाला जो बीच वाला आपको साइड दिख रहा है, ये साइड क्या है, कॉमन है, ठीक है, क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, कॉमन है, तो उसको कॉमन रहने दो, ठीक है। ओ एम और ओ एम बराबर है, मतलब कॉमन है, दोनों सर्कल दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है। तो ये बराबर है। और दूसरा चीज़ हम लोग को राइट एंग 90 डिग्री गिर रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर रहता है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये पूरा 180 है। तो अगर ये 90 तो 180 माइनस 90 ये भी 90 होगा, ठीक है। तो एंगल ओ एम ए और एंगल ओ एम बी भी 90 होगा। तो एंगल ये यहाँ से हम लोग को प्रूफ पता लग गया कि साइड राइट हैंड साइड से आरएचएस से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो इसका जो साइड होगा एम ए और एम बी ये भी बराबर होगा, ओके। तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल बहुत सारा है। जो बाइक और व्हील होता है, ठीक है, बाइक का व्हील होता है उसका स्पोक कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है। तो ये जो बाइक का स्पोक है सर्कल पे, मतलब जो बाइक का रिम होता है उस पर एक 90 डिग्री गिराता है ऐसे करके, ठीक है, 90 डिग्री ऐसे करके गिराता है। ये क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सर्कल को जो कॉर्ड होता है उसको इक्वली बाइसेक्ट करता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ठीक है। देखो हम लोग इसको मैटप्लॉलिप करके एक पाइथन में होता है उससे हम लोग पढ़ सकते हैं। इसको हम लोग आर्किटेक्चर में यूज़ करते हैं, ब्रिज में यूज़ करते हैं, सैटेलाइट सिग्नल के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जितना ये देखो ये ब्रिज का बारे में बता रहा था ना कि ये ऊपर ये वाला जो होता है, ये वाला जो ब्रिज होता है, ये वाला जो होता है इसको दो केबल्स होते हैं ब्रिज बनाने समय। ये केबल हो गया तुम्हारा मेन केबल, ठीक है, ये जो होता है दो मेन केबल होता है, और ये वाला जो नीचे सपोर्ट दे रहा है ये होता है वर्टिकल केबल। यही तो 90 डिग्री में क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, यही क्या कर रहा है, वर्टिकल केबल बाइसेक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल केबल को, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है ब्रिज और पिलर का, आपने देखा होगा ट्रेन पार होता है, ब्रिज रहता है, पिलर रहता है, उसी तरीके का। तो रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझो कि महत्वता क्या है, तभी मज़ा आएगा, ठीक है। जब तक डेप्थ से नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आता है पढ़ाई, ठीक है। यही मत सोचो कि पढ़ाई कर ली आगे कुछ ध्यान नहीं देना है। तो पूरा अच्छा से देखो कि आर्किटेक्चर ब्रिज सैटेलाइट सिग्नल्स में यूज़ होता है, सैटेलाइट सिग्नल्स में भी यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। आप थोड़ा सा चेक करोगे। और अगर किसी को पाइथन आता है तो आप मैटप्लॉलिप करके एक है तो उसको आप ध्यान देकर उसको पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप बहुत सारा चीज़ सीख सकते हो, उसमें ये सारा चीज़ यूज़ होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि अगर कॉर्ड जो है बाइसेक्ट हो रहा है, तो एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा है तो जो सेंटर से
सेंटर से आपने जो परपेंडिकुलर वो 90 डिग्री होगा, ये कैसे होगा? तो अब हम लोग को पता है गिवन क्या है, गिवन क्या है कि ये और ये बराबर है, बाइसेक्टेड है। और हम लोग को एक चीज़ पता है कि ये दोनों रेडियस भी बराबर है, तो ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी बराबर है, और ए एम और एम बी बराबर है, ठीक है। और ये ओ एम तो क्या है, कॉमन है ना, ओ एम तो कॉमन है, और ए एम बी तो ये तो गिवन था, ठीक है। और ओ ए बी तो रेडियस था। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं, साइड से प्रूव कर सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। सीपीसीटी से बोल सकते हैं कि एंगल ओ एम ए, ठीक है, एंगल ओ एम ए 90 डिग्री है, मतलब ओ एम ए और ओ एम बी बराबर है 90 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि ये पूरा 180 है, पूरा 180 है, तो अगर ये एक्स है तो ये एक्स होगा, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180, तो x कितना होना चाहिए, 180 डिवाइडेड बाई 2, जो कि 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं हम लोग। तो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग को देखना है कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स है, मान लो ये दो इक्वल कॉर्ड्स है, ऐसे दो इक्वल कॉर्ड्स है, ठीक है। अगर उसमें से दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से अगर हम गिराते हैं तो ये सेम होंगे, ठीक है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगे सेंटर से, इक्वल कॉर्ड्स, अगर कॉर्ड्स इक्वल है, इफ़ टू कॉर्ड्स आर इक्वल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज़ ऑल्सो सेम, ठीक है। मतलब ये इक्वी डिस्टेंस होंगे, मतलब ओ एम और ओ एन दोनों सेम होंगे, ठीक है। इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। जो ओ ए है, अच्छा ट्रायंगल देख लो, ये दो ट्रायंगल बन, ये ट्रायंगल बन रहा है, दो ट्रायंगल, तो यहाँ से दिख रहा है ओ ए और ओ सी, ये तो रेडियस है, ठीक है। और ए बी और सी डी क्या है, बराबर है, गिवन है, क्योंकि टू कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं बराबर है, और ये 90 डिग्री दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो एंगल ओ एम ए एंड एंगल ओ एन सी ये भी बराबर है। अच्छा यहाँ नहीं दिया, साइड एंगल साइड से इसको सॉरी आरचेस से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आरचेस से इसको प्रूव कर सकते हैं, और ओ एम और ओ एन प्रूव हो जाएगा, ठीक है, कि ओ एम और ओ एन बराबर है, ओके। देख लो ओ एम और ओ एन बराबर है। इसका उल्टा क्या है, ये उल्टा एग्जाम्पल इसका, ये इसका सेम क्वेश्चन वो जो हम बताए थे ना कि ये जो बिजली झूला वाला वही चीज़ है, ठीक है। जो बिजली झूला ऊपर वाला चीज़, ठीक है। अगर कॉर्ड सेम है तो इक्वी डिस्टेंस पे रहेंगे। जो यहाँ पर बंदा बैठा है और यहाँ जो बंदा बैठा है, दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा, क्योंकि दोनों के बीच का जो कॉर्ड है, कॉर्ड सेम है, ठीक है। वो सर्कल जो है बिजली झूला जो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। अगर ओ ए और ओ सी बराबर, ओ एम और ओ एन बराबर, और ए बी और सी डी बराबर, ठीक है। आई होप कितना तक समझ में आ रहा होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने वाले। एक्सरसाइज 9.2 का पहला क्वेश्चन है टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, ठीक है। हम लोग को कॉमन कॉर्ड का लेंथ निकालना है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मान लो ये एक बड़ा सर्कल है, ठीक है, क्या ये एक बड़ा सर्कल है, ओके, ठीक है। ये एक बड़ा सर्कल है, और यहाँ पर एक छोटा सर्कल भी बना देते हैं हम, 5 कुछ यहाँ से है, और बड़ा सर्कल का जो रेडियस है वो 5 है, ठीक है। कितना है, 5 है। अब ये छोटा सर्कल जिसका रेडियस है 3, ठीक है, कुछ लगभग यहाँ से बना देते हैं ऐसे करके, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बना देते हैं, ओके। छोटा सर्कल का रेडियस है 3, ठीक है। और ये है उन लोगों का कॉमन कॉर्ड है, बड़ा सर्कल का भी कॉमन कॉर्ड है, छोटा सर्कल भी कॉमन कॉर्ड है, तो ये कॉमन कॉर्ड हो गया, ठीक है। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, जो लेंथ है कॉमन कॉर्ड का ये प्रूव करना है, ठीक है। तो लेंथ मान लो पी क्यू है, तो पी क्यू ही फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चंस, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको हम लोग विदाउट सॉल्विंग और विदाउट पेन एंड पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि जो सेंटर से डिस्टेंस है, मतलब कि सेंटर ऑफ सर्कल, छोटा सर्कल और सेंटर ऑफ बड़ा सर्कल, दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो वही दिया हुआ है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़ा सर्कल का सेंटर और छोटा सर्कल का सेंटर, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हो कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है ना, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये जो बड़ा वाला सर्कल है, ये बड़ा सर्कल का रेडियस कितना है, 5 है, तो ये 4 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाला 3 निकलेगा कि नहीं,
क्योंकि 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हम यहीं करके दिखाते हैं। देखो 5 का स्क्वायर यही है ना, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। मान लो अभी 3 निकला नहीं है, मान लो इसको x है, तो 5 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। तो जो एक्स स्क्वायर निकलेगा वो कुछ ऐसे ही निकलेगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जो हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x कितना निकल जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर था, तो जब इसको हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो रूट लगेगा तो रूट ऑफ 9 कितना होता है, रूट ऑफ 9 होता है 3, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, रूट 3, सॉरी x हो जाएगा सिर्फ 3, x क्या हो जाएगा 3। तो दिख रहा है आपको ये 3 निकला। तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर गिर रहा है ना, ये परपेंडिकुलर गिर रहा है ना रेडियस से, सेंटर से। तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है। ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो आंसर तो आपने ऐसे ही निकाल दिया 6, है ना। तो आपने आंसर तो ऐसे ही निकाल दिया सिंपल से, क्या लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, जो 8 क्लास में पढ़ के आते हैं, ठीक है। हो जाएगा, ऐसे निकाल सकते हैं। बट ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे करोगे तो हो सकता है टीचर मार्क्स ना दे, तो आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। प्रॉपर सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको गिवन लिखना होगा कि एक सर्कल दिया है जिसका रेडियस 3 है, एक सर्कल दिया है जिसका रेडियस 5 है, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों सर्कल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, है ना। कंस्ट्रक्शन करके दिखाना होगा आपको सारा चीज़। और जैसे ये बड़ा सर्कल है, छोटा सर्कल है, बड़ा सर्कल का सेंटर O1 ले ले, तो छोटा सर्कल का सेंटर O2 ले लो, ठीक है। इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ सेंटर का 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब O1 से लेकर ये बीच में हम पॉइंट बनाते हैं M, क्या बनाते हैं M, तो O1 से M का जो डिस्टेंस है वो मान लो x है, तो बाकी डिस्टेंस कितना होगा 4 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा 4 है। तो अगर ये x है, मान लो ये 1 है, तो ये कितना होगा 3। तो अगर ये x है तो ये कितना होगा 4 माइनस 1 3, मतलब 4 माइनस एक्स, ठीक है। अगर ये x है तो 4 माइनस एक्स, समझ में आ रहा है, क्योंकि टोटल 4 है। तो अगर एक x हो गया तो दूसरा 4 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला बड़ा वाला सर्कल का रेडियस कितना है 5, छोटा वाला सर्कल का रेडियस कितना है 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो आप देखो ये वाला सर्कल देखो, मतलब ये वाला ट्रायंगल देखो, ठीक है, O1MP। तो यहाँ से निकलेगा 5 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 5 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, ठीक है। 5 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, यही है ना। ये 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर, ये वाला MP, ठीक है, ये वाला MP जो छोटा सा MP, ठीक है, MP का स्क्वायर। और ये वाला सर्कल से क्या निकलेगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और MP का स्क्वायर, ठीक है। देखो 3 स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। अब हम लोग चेंज करेंगे, माइनस साइन चेंज करेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। एक्स स्क्वायर को हम लोग ऐसे ही लिखे और 4 माइनस एक्स स्क्वायर को ओपन किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखना है माइनस क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या था माइनस, हम चेंज किए ना, ये सब तो पता ही होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स, ठीक है। तो 25 माइनस 9 कितना होता है 16। अब यहाँ से देखो ये एक्स स्क्वायर, अरे माइनस प्लस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस तो एक्स स्क्वायर होता है, माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये वाला एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ से माइनस 4 स्क्वायर बाहर निकला, और यहाँ से माइनस 8 था और ये बाहर माइनस, तो बाहर निकलेगा तो प्लस 8x हो जाएगा। बाकी तो कैलकुलेशन है। तो यहाँ 16 था, यहाँ 8x था, तो इधर 32 हो गया, इधर 8x, तो 8 और 32 कटा तो 4 बचेगा, तो x कितना होगा 4, x कितना होगा 4, ठीक है। x कितना निकला 4, x कितना निकला 4। अब यही वाला x को क्या डाल दो, यहाँ पर डाल के फर्स्ट वाले इक्वेशन में डाल के निकाल लो, है ना। 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, तो यहाँ से MP निकल जाएगा, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू MP स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 इक्वल टू MP स्क्वायर, तो √9 आएगा, ठीक है। √9 मतलब कि 3, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल का विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड। तो ये वाला एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, वन कॉर्ड प्रूव क्या करना, सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड। तो पहला ये कॉर्ड है, तो इसका सेगमेंट क्या होगा AP हो जाएगा ना, AP ये उसका सेगमेंट है, AP और PB, ठीक है, इक्वल है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। सेगमेंट क्या है, ये है सेगमेंट उसका, ठीक है, क्योंकि ये 2 इक्वल भाग में सर्कल को बांट रहा है। सेगमेंट क्या करता है, सेगमेंट मतलब होता है सर्कल को 2 इक्वल भाग में, मतलब 2 इक्वल भाग नहीं, मतलब 2 पार्ट में बांटना, 2 पार्ट में बांटना, इक्वल नहीं, इक्वल होगा मतलब डायमीटर्स होगा तब इक्वल कटेगा, बट
दो पार्ट में बांटना होता है सेगमेंट, ठीक है, ए सेगमेंट है। तो बता रहा है कि सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल, तो ए पी और पी बी दोनों बराबर है, ये बताना है। ए पी और पी बी सॉरी ए पी और सी पी ये बराबर है, ए पी और सी पी दोनों कॉर्ड का देखो ए से लेकर पी का डिस्टेंस और पी से लेकर सी का डिस्टेंस ये बराबर है, और डी से लेकर पी का डिस्टेंस और बी से लेकर पी का डिस्टेंस ये बराबर है, मतलब ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये सबको प्रूव करना है। तो ए पी मतलब ए पी और सी पी बराबर है और डी पी और पी बी बराबर है, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो हम लोग देखते हैं। मान लो हम यहाँ पर एक सर्कल बनाए ऐसे करके, ये एक कॉर्ड बना लेते हैं, ठीक है, और एक कॉर्ड ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ और ये सेंटर है, सेंटर से एक डिस्टेंस बना लेते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री बना लो, ये परपेंडिकुलर बना लो, ठीक है। परपेंडिकुलर बना लिया हम लोग ने, देखा, देखो परपेंडिकुलर बना रहे हैं, एक इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाए, एक इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाए। अब नामकरण आप कर सकते हो, नामकरण हम जैसे किए वैसे कर सकते हो। ये सी है, ये डी है, ये ए है, ये ए बी। तो हम एक कॉर्ड बना रहे हैं ए बी, एक कॉर्ड बना रहे हैं सी डी, ठीक है। और बीच में हम एक तो सेंटर का नाम दे देते ओ, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर है इसको एम और इधर एन, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, जो ये ए और ये वाला को भी नाम दे दो पी, ठीक है। ए और पी, ए और पी और सी और पी, तो ए पी और सी पी बराबर है, क्योंकि यही क्वेश्चन है। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल, सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल, सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल मतलब कि ए बी और सी डी, ये वाला हम लोग को प्रूव करना है। सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड्स आर इक्वल प्रूव करना है, मतलब ए पी और सी पी बराबर है और बी डी बी पी डी पी और पी बी बराबर है, ये प्रूव करना है, मतलब कि बी पी और डी पी ये बराबर है। तो ये दो चीज़ अगर प्रूव कर लेते हैं तो हम लोग को हो जाएगा। तो देखो ट्रायंगल ओ एम पी और ओ एन पी में देख लो, ठीक है। ओ एम पी मतलब ये वाला ट्रायंगल हो गया ओ एम पी, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, और एक ओ एन पी ये वाला छोटा, दो ट्रायंगल यहाँ पर, ठीक है। ये दो ट्रायंगल में देखना है। तो हम लोग को दिख रहा है कि एंगल ओ एम पी और ओ एन पी ये दोनों क्या है 90 डिग्री, ये दोनों क्या दिख रहा है 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। और ओ एम और ओ एन है ना, ओ एम और ओ एन ये क्या है इक्विडिस्टेंट, ठीक है। तो ओ एम और ओ एन भी बराबर है। देखो ओ एम और ओ एन इसलिए बराबर है क्योंकि हम लोग पढ़े दो कॉर्ड्स अगर बराबर है, दो कॉर्ड्स बराबर है तो जो परपेंडिकुलर गिरता है सेंटर से वो भी बराबर होगा, मतलब इक्विडिस्टेंट होंगे। तो ओ एम और ओ एन बराबर है क्योंकि वो इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। और ये तो 90 डिग्री है ओ एम पी और ओ एन पी, ठीक है। समझ में आया। और दूसरा देख लो, ये ओ पी और ओ पी क्या है कॉमन है, ओ पी कॉमन, ठीक है। ओ पी क्या है कॉमन। हम लोग प्रूव कर सकते हैं ओ एम पी और ओ एन पी क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सी पी सी डी से बोल सकते हैं कि जो पी एम है और पी एन ये बराबर, ये हम किए अभी प्रूफ, पी एम और पी एन बराबर प्रूफ किए, ठीक है। अब हम लोग देखे जानते हैं कि ए बी और सी डी बराबर है, इक्वल कॉर्ड्स है, ठीक है। ये क्या हुआ है, ये गिवन है, ये क्या है गिवन है, ठीक है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है ए पी और सी पी, हम लोग को ये नहीं प्रूफ करना है ए बी और सी डी। तो ए बी और सी डी ये हम लोग को पता है कि गिवन है कि बराबर है, तो दोनों को हाफ कर दो, हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी। हाफ ऑफ ए बी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा ए एम। हाफ ऑफ ए बी ए एम क्यों होगा ध्यान से देखना, क्योंकि ये ए से लेकर बी एक कॉर्ड है और 90 डिग्री जो बन रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, मतलब एम के पॉइंट तक बन रहा है। तो जो ये पॉइंट होता है ये क्या करता है बाइसेक्ट करता है, ठीक है। परपेंडिकुलर जहाँ गिरा है वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, परपेंडिकुलर जहाँ गिरा है सेंटर से जो परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। तो ए एम और एम बी बराबर होगा, ए एम और एम बी बराबर होगा, ठीक है। तो हाफ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा ए एम हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही हाफ ऑफ सी डी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा सी एन, ठीक है। याद रखना सी एन होगा, ठीक है, सी एन, गलती मत करना, सी एन होगा, जहाँ परपेंडिकुलर गिरा है वही होता है, ठीक है, उसका मिड पॉइंट। तो ए एम और सी एन हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, दो इक्वेशन बना यहाँ से, एक इक्वेशन ये ला बना पी एम इज इक्वल टू पी एन है ना, इक्वेशन बना ये ला पी एम इज इक्वल टू पी एम और पी एन है ना, ये पी एम और पी एन ये बराबर, और एक इक्वेशन बना ए एम और सी एन। अब दोनों को ऐड करो, ये पूरा बन गया, ठीक है, ए पी और सी पी वाला खेल बन गया, ठीक है। पहला वाला केस में हम ये दोनों को इक्वल कर दिए, फिर दूसरा केस में ये वाला और ये वाला सॉरी ए एम और एन सी ये दोनों इक्वल कर दिए, दोनों को ऐड करो। तो वही इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड किए है ना, तो ए एम प्लस पी एम और सी एन प्लस पी एन, ठीक है, हो गया। तो ए एम प्लस पी एम देख लो क्या है, ए एम
प्लस पी एम, ये पूरा क्या क्या है, ए पी है, और पी एन प्लस एन सी क्या है, मतलब सी एन वही क्या है, सी पी है, ठीक है। तो इक्वेशन 4, तो ए पी और सी पी प्रूफ हो गया, ए पी और सी पी प्रूफ हो गया, ठीक है, ए पी और सी पी प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम इक्वेशन 2, कहाँ गए इक्वेशन 2, ये आप देख सकते हैं कि ए बी और सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी आप दिख रहा होगा, ये जो गिवन है ए बी और सी डी। अब ए बी और सी डी बराबर है, और हम लोग देखें कि ए पी और सी पी भी बराबर है, ए पी और सी पी बराबर है, तो इन दोनों को माइनस करके ये निकल जाएगा, बी पी और डी पी और बी पी बराबर है, ठीक है, बी पी और डी पी बराबर है, ए बी में से ए पी माइनस किए, सी डी में से सी पी माइनस किए, तो पी बी और पी डी बराबर है। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 4, ठीक है। एक बार पूरा देख लो कि सबसे पहले हम क्या किए, पी एम और पी एन को बराबर किए, पी एम और पी एन को बराबर करने के लिए कॉन्ग्रुएंट करना था, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए, ठीक है। फिर हम देखें ए बी और सी डी बराबर होता है, तो ए बी और सी डी मतलब सॉरी गिवन है, ए बी और सी डी बराबर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम हाफ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ए पी और सी पी को प्रूफ करना है बराबर है, ठीक है। तो ए बी और सी डी का हम हाफ करेंगे, तो हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी, तो कहाँ होगा हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी, जहाँ पर परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो ये होगा मिड पॉइंट, तो ये इसका ए एम होगा, इसका सी एन हो जाएगा, इसका ए एम हो जाएगा, इसका सी एन हो जाएगा, ठीक है। तो ए एम और सी एन, तो ए एम और सी एन ले लिए, अब दोनों को ऐड करेंगे, पी एम और ए एम को ऐड करेंगे, देखो पी एम और ए एम को ऐड करेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, ए पी, वैसे ही पी एन और सी एन को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, पी एन, तो बस हो गया, सॉरी सी पी, तो ये बन जाएगा ए एम प्लस पी एम, सी एन प्लस पी एन, ए पी प्लस सी पी, ठीक है। तो इक्वेशन 4 बन जाएगा, और दोनों इक्वेशन को अगर माइनस कर देंगे बड़ा में से छोटा, तो पी बी और पी डी भी प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन 2 को भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कुछ नहीं है, थर्ड क्वेश्चन उसका कन्वर्स है। तो इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन टू द सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। मतलब कि बोल रहा है कि अगर मान लो ये जो डिस्टेंस है ये 90 डिग्री जो है, ये प्रूफ करना है कि जो ओ पी एम और ओ पी एन ये बराबर है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप प्रूफ कर सकते हो ना, एंगल ओ एम पी एंगल ओ एन पी, ये तो 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री, और ओ पी और ओ पी क्या है कॉमन, ठीक है, और ओ एम और ओ एन क्या है रेडियस। तो कॉन्ग्रुएंट जहाँ हो गया तो हम बता सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है, ठीक है। यही क्वेश्चन था कि हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से पी है ना, टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, लाइन इज इंटरसेक्टिंग दिस टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, देन विद सेंटर ओ है, ठीक है, यहाँ पर सेंटर ओ बना देना, और ए बी सी डी पॉइंट है, 4 पॉइंट है, ठीक है, जो कि प्रूफ करना है हम लोग को। अब प्रूफ करना है ए बी जो है सी डी के बराबर, मतलब ये वाला लाइन, ये वाला पॉइंट ए से बी और सी से डी, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग को गिवन लिखना हो कि लाइन ए बी इज इंटरसेक्टिंग टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ एट बी। प्रूफ क्या करना है, ए बी और सी डी बराबर है, हम लोग क्या करना है, हम लोग एक परपेंडिकुलर लाएंगे ओ एम, ठीक है, जो सेंटर है, जो सेंटर है, सेंटर से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है, सेंटर से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे जो कि ओ एम होगा, ठीक है, ओ एम परपेंडिकुलर नॉन ए डी, ठीक है, ए से लेकर डी के ऊपर परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है। अब और अगर ओ एम जो है ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो वो बी सी के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा, है ना, तो वही चीज़ लिखे ओ एम परपेंडिकुलर ए डी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। अब परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो परपेंडिकुलर गिरने पे अगर परपेंडिकुलर गिरा है सेंटर से तो यहाँ बाइसेक्ट हो जाता है, तो बी एम और बी एम और एम सी बराबर है, बी एम और मतलब एम सी या सी एम दोनों सेम बराबर है, ठीक है। अब ओ एम ए डी पे भी गिरा है तो ए एम और एम डी ये भी बराबर होगा, ए एम और एम डी ये भी बराबर होगा। अब दोनों को हम माइनस कर देंगे, इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, तो ए एम में से बी एम को माइनस करेंगे, ए एम में से बी एम को माइनस करेंगे तो ए भी निकलेगा, ठीक है, इधर से ए भी निकलेगा, और सी डी में से अगर हम सी डी में से एम सी को माइनस करेंगे, है ना, सॉरी डी एम में से सी एम को माइनस करेंगे, डी एम माइनस सी एम में करेंगे तो ए बी इक्वल सी डी होगा, मतलब इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करना, इक्वेशन 2 में से -1 करना, देखो है ना, मतलब ए एम माइनस बी एम करेंगे तो ए भी निकल जाएगा, और डी एम माइनस सी एम करेंगे तो सी डी निकल जाएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा, मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। 5 मीटर का रेडियस है। इन अ पार्क रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। रेशमा जो है सलमा को बॉल पास करती है। एंड सलमा टू मनदीप। सलमा क्या करता है, मनदीप को बॉल पास करता है। एंड मनदीप टू फिर वो वापस रेशमा को भेजता है बॉल, ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड सलमा एंड मनदीप, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इज 6 मीटर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो रेशमा और मनदीप के मतलब ये वाला डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। ये डिस्टेंस दिया है और ये डिस्टेंस पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखना है कि एक ट्रायंगल ORS, आपको ये बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा ORS, बड़ा ट्रायंगल दिख रहा होगा ORS। आपको यहाँ से क्या करना है, एक O से परपेंडिकुलर गिराना है, मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर। क्यों गिराना है, क्योंकि आपको दिख गया कॉर्ड, यहाँ दिख गया कॉर्ड। तो कॉर्ड्स को अगर हम ऐसे करके सेंटर गिराते हैं, सेंटर से गिराते हैं तो क्या हो जाएगा, RL और LS बराबर हो जाएगा ना। तो परपेंडिकुलर O से गिराना है सेंटर, क्योंकि कॉर्ड बाइसेक्ट करेगा तो RL और LS बराबर हो जाएगा। अब RL और RS बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब RS/2 उसका आधा कर दो, मतलब कि 3 सेंटीमीटर हो जाएगा दोनों, ठीक है। RL भी 3 सेंटीमीटर और LS भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हो ये वाला डिस्टेंस पूरा 5 था, ठीक है। O से S ये रेडियस है ना, तो 5 था। और यहाँ से ये LS वाला डिस्टेंस कितना है, 3 है ना। अभी तो निकाले 3 है, आधा हो गया। और ये हम लोग को फाइंड करना, तो निकल जाएगा, ठीक है। ये एक ट्रायंगल को हम साइड करके समझाने के लिए निकाले बस, ठीक है। यही वाला ट्रायंगल, जो ये वाला ट्रायंगल है ना OLS वाला, उसको निकाल के यहाँ रख दिए, ठीक है। तो OLS, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 5² + 3² जो अप्रॉक्स आएगा, इसका आंसर 4 आएगा, ठीक है। 4 इसका आंसर आएगा, ठीक है। OL² = 5² पाइथागोरस थ्योरम में देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ORK और ट्रायंगल OMK, है ना। ORK और OMK में देखो, ORK मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ORK और OMK, ये ट्रायंगल में देखेंगे तो OR और OM दोनों बराबर है ना, रेडियस है। और एंगल ROK और एंगल MOK ये भी बराबर है ना, ये भी एंगल बराबर है। और OK और OK कॉमन है, ठीक है, कॉमन है। तो यहाँ से देख सकते हैं OR और OM बराबर, OM बराबर है एंगल ROK और MOK बराबर है, OK कॉमन है। तो यहाँ से एंगल मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। CPCD से हम लोग बोल सकते हैं कि जो RK है, ये RK और MK भी बराबर होगा, मतलब कि बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि RK और MK बराबर है। तो OK जो है, OK है परपेंडिकुलर टू RM, OK इज़ परपेंडिकुलर टू RM। तो यहाँ पर सब दिया हुआ, आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। कुछ डाउट तो नहीं होगा, ORK और OMK में कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो इतना देर से हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव कर ही जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो भाई, दो ट्रायंगल है ORS, ठीक है। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है ORS में, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम लोग अभी प्रूव करेंगे। तो RS × OL, देखो ये RS है और ये OL है, ठीक है। RS मतलब ये कॉर्ड है, OL क्या है, उसके जो ऊपर परपेंडिकुलर गिरा है, ठीक है। तो RS और OL, तो पहला ट्रायंगल क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ बेस क्या है RS, हाइट क्या है OL, ठीक है। तो वही लिखे हाफ इंटू RS × OL। अब नेक्स्ट क्या है, हाफ इंटू OS × OK। तो अब इधर से देखेंगे तो इधर पर ही खड़ा होकर देख लो, ये OS है, मतलब ये बेस बन गया और परपेंडिकुलर क्या गिर रहा है, ये गिर रहा है, हाइट ये है। तो हाफ इंटू OS × OK, ठीक है, यही चीज़ है। तो हाफ इंटू RS × OL, हाफ इंटू OS × KR। तो हाफ कटा, तो RS × OL, OS × KR। तो वैल्यू डालना, RS का वैल्यू क्या था, ये RS था ना पूरा, RS 6 था। और OL का वैल्यू क्या था, OL का वैल्यू हम लोग निकाले थे, यहाँ पर OL का वैल्यू था 4, है ना। OL का वैल्यू क्या था, ये OL का वैल्यू 4, तो वैल्यू डाल दी यहाँ पर 4। अब OS का वैल्यू क्या है, OS का वैल्यू, तो ये तो पूरा रेडियस है, 5 है, ठीक है, रेडियस 5 है। और KR यही तो निकालना है, ठीक है, KR यही तो निकालना है। ये निकल गया तो इसका डबल कर देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो KR निकालते हैं, इधर चल जाएगा तो 5 नीचे आ जाएगा, 6 × 4 / 5, तो अप्रॉक्स 9.66 KR आएगा, ठीक है। अप्रॉक्स 9.66 KR आएगा। बट हम लोग को क्या निकालना है, पूरा फुल निकालना है ना, तो उसका 2 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, ठीक है।
नहीं नहीं, ये पूरा के आर निकल गया, आपको के आर ही निकालना था 9.66, हाँ के आर ही निकालना था, 9.66 निकल गया। ठीक है, हम लोग को के आर ही निकालना था। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप निकालना था, रेशमा और मनदीप के बीच में डिस्टेंस क्या है वो निकालना था। ठीक है ना।